Good morning, students. Today we will study exercise 7.1 question 9. Question 9 is, if Q01 is equidistant from P 5 minus 3 and R x 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. So, coordinates of P are 5 minus 3, coordinates of Q are 0, 1, and coordinates of R are x 6. So, let it is P. Q is equidistant from P and R. Q is equidistant from P and R. So, coordinates are 0 and 1. Then it is x, y. Coordinates of P are 5 minus 3. Let x1, y1, and coordinates of R are x6, x and 6. Let it is x2, y2, in this way. Now point K is equidistant from P and R. This distance is equal. It means distance PQ is equal to distance QR. डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन दोनों इक्वल हैं तो हम इसको एक साथ इक्वल कर सकते हैं. सो हियर Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and R. So by using distance formula, PQ is equal to RQ or PQ is equal to QR. No matter. Now distance PQ कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी डिस्टेंस जो हम फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square. So, PQ is equal to square root of 5 minus 0 whole square plus minus 3 minus 1 whole square is equal to square root of x minus 0 plus 6 minus 1 whole square. So, taking square both sides, तो इनके रूट कैंसिल हो जाएंगे. It is 5 square plus minus 3 minus 1 minus 4 square equals x square, x minus 0 nothing, plus 6 minus 1 5 square. Squaring both sides. So it becomes 25 plus it becomes 16 x square plus 25. 25 cancel. X square is equal to 16. Therefore, x is equal to plus or minus 4. This is the value of x. This is the value of x. x की वैल्यू फाइंड की है. बाद में बोलता हूं मैं फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर
and PR. Okay, so distance QR is equal to x की वैल्यू 4 लेना है हमको. QR is equal to, यहां पर अभी हम x का वैल्यू 4 लेंगे प्लस और माइनस. सो इट इज जस्ट 4. ओके, 0 minus 4, 1 minus 6. One minus 6, that is equal to minus 4 का स्क्वायर 16 minus 6 plus 5 plus 1 minus 5 का स्क्वायर minus 5, that is 25. It means 41. 0 minus 4 minus 4. Minus 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16. Minus 6 plus 1 minus 5. Minus 5 का स्क्वायर 25. 25 plus 16 41. अगर हम यहां पर नेगेटिव 4 भी रखें तो क्या हो जाएगा? जीरो माइनस माइनस 4 whole square plus 1 minus 6 square, it becomes plus 4 minus minus plus 4, 4 का square 16 plus minus 6 plus 1, that is minus 5 का square 25. मतलब no change. So QR is equal to square root 41. The value of x is plus 4 minus 4. QR का डिस्टेंस चाहे पॉजिटिव 4 रखो चाहे निगेटिव 4 रखो, वैल्यू सेम आ रही तो QR मिल गया. अब हमें फाइंड करना है PR, एक बार पॉजिटिव 4 लेकर के एक बार निगेटिव 4 लेकर के. वो कैसे करेंगे? इसको मैं क्लीन कर दो. इज इट विजिबल? ओके, क्लियर. डिस्टेंस PR फाइंड करना है. यस, PR इज इक्वल टू दिस इज P, दिस इज R. एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 4. 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस minus 3 minus 6 whole square, then it becomes 5 minus 4 1, 1 का square 1 plus minus 3 minus 6 minus 9 का square 81, it is 82 when positive 1 is taken. Now when x is equal to minus 4, it is x is equal to 4. PR is equal to square root of 5 minus minus 4. प्लस इसमें कोई चेंज नहीं, -3 -6
माइनस माइनस प्लस 4, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 1 and 1 2, it is 81 का स्क्वायर रूट 9, 9 रूट 2. So PR is equal to either root 82 or PR is equal to 9 root 2. So यहां पर PR के दो वैल्यूज मिल गए. ये था आपका 7.1 क्वेश्चन 9 और यहां पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और हमने सभी प्रॉब्लम्स किए हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, ये एक्सरसाइज होने के बाद में एक्सरसाइज के नीचे लिखा है सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला और ये सेक्शन फार्मूला आपको गिवन है पेज नंबर 163, page 163. If the coordinates of the point P x y which divides the line segment joining A x1 y1 B x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2. So section formula for internal division. Internal division. Let's suppose this is A, this is B, coordinates are x1 y1, coordinates of B are x2 y2, and point PXY divides the line segment. This is P. Anywhere, लेकिन इन दोनों के इंटरनल डिवीजन, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी. लेट इट इज P विथ कोऑर्डिनेट्स x एंड y. सो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? जो पॉइंट इंटरनली ये सेगमेंट है, जब भी कोई पॉइंट किसी सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m1 m2, दिस पार्ट AP इज m1 रेशियो m2.
तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये वो फार्मूला है, इट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। सो इसके इज इक्वल टू पी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, यानी कि सिंपली एक्स इज इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड तो कैसे करते हैं वो हम करें। सो एक्स इज इक्वल टू m1 के साथ, इस रेशो के साथ इसका x कोऑर्डिनेट लेना है m1x2 प्लस, और इस रेशो के साथ इसका कोऑर्डिनेट लेना है x कोऑर्डिनेट। सो ये हो जाएगा m2x1 अपॉन इन दोनों का सम m1 प्लस m2। सो जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है उसका x कोऑर्डिनेट हम इस रेशो की हेल्प से इस तरह से करते हैं, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y इक्वल्स, सिर्फ x की जगह हमको y कोऑर्डिनेट लेना है, फार्मूला एक ही रहेगा। सो m1 के साथ y2 लेंगे y के लिए, प्लस m2 के साथ y1 लेंगे और यहां पर दोनों का प्लस करेंगे। इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। और इन दोनों के यदि एक साथ लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स, एक्स के लिए पहले इसको लिखें, वाई के लिए फिर इसको लिखें, तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2, एंड y के लिए ये लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। ये दिस वन और दिस वन ये सेपरेट है, ये अलग अलग है। कभी हमको दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक का यूज करना है तो खाली x ले लें, अगर y लेना है तो सिर्फ y ले लें। तो कभी ये इंडिविजुअल के लिए हम यूज कर सकते हैं, और यदि एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों फाइंड करना है तो हम इसको भी ले सकते हैं। ये था सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, जहां पर रेशियोज गिवन रहेंगे, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, और हमको जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, सो अंडरस्टूड। इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, 7.2 का क्वेश्चन 1 भी बेस्ड है और 8 बेस्ड है। सो इस सेक्शन फार्मूला का यूज करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1, लेट्स से टाइम is nearly over, so question 1 7.2, find the coordinates of the point which divides the point -7। चलो हम इसको शॉर्टकट जल्दी कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 1, so okay students, today's time is over। I think कि इसको बहुत जल्दबाजी में करके और अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो
तो इसको हम साइलेंटली नेक्स्ट पीरियड में करेंगे आराम से, ताकि मैं समझा सकूं कि कैसे करते हैं. ओके, सो टुडेज टाइम इज ओवर एक्चुअली. So, okay, student, see you in the next period. Good day, goodbye. Thank you.